Good morning, everyone. Uh, as we have discussed about the concepts of the chapter, today we'll discuss question answers. Firstly, the main text questions which are given in between the chapter. Starting with the first one, what are canal rays? If you know the answers, you can unmute yourself and let me know. And canal rays are the positively charged particles, and it will get the radiations. It will prevent from the radiation. E Goldstein prevent these rays, and these are also called as electrons. Canal rays, beta, you are talking about Yes. It electrons. is also called as protons. एक तो रेज को आपने प्रोटॉन्स नहीं ऐसे नहीं लिखना है इसको कैनल रेज आर दी यू कैन से रेज विच originate from the anode and travel towards cathode. So these are positively charged rays. Starting जो करनी है, these are positively charged rays originating from anode and they travel towards cathode. Actually जब ये एक्सपेरिमेंट गोल्डस्टीन ने किया था तो उसने कैथोड को एक परफोरेटेड प्लेट की तरह यूज किया था, मतलब जिस मेटल का कैथोड लिया उस मेटल प्लेट के अंदर छोटे छोटे होल्स थे. तो as these rays pass through the perforations का मतलब होता है holes, perforations of cathode, so these are also called as canal rays. Otherwise जो anode rays ही था नेम, canal rays उनको क्यों कहा गया, क्योंकि वो perforations में से पास हो रही थी. So these are made up of protons, you can say. These rays consist of positively charged particles called protons. But you can't say canal rays are मतलब they are made up of or they consist of positively charged particles called protons. I'll send answers in group, but we are just discussing answers here. If an atom contains one electron and one proton, will it carry any charge or not? It will tell now. Ma'am, an atom containing one electron and one proton will not carry any charge. They make an atom neutral. Why? Why it क्योंकि will? मैम जो एक इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है और जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिव होता है. इसलिए पॉजिटिव और नेगेटिव इसलिए जिस चार्ज में जो पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं दोनों जो चार्जेस होते हैं उसको न्यूट्रल बोल देते हैं. Because charges on electrons and protons are equal and opposite. Electron carry -1 negative charge and protons carry +1 positive charge. Okay? So as they have equal and opposite charges, so they cancel out or they neutralize each other's charge. Hence, an element or an atom carrying equal number of protons and electron will never carry any charge. Okay? Otherwise, good. On the basis of Thomson's model of an atom, explain how the atom is neutral as a whole. इसमें बेटा आपकी बुक में 2 पॉइंट्स हैं, यू कैन मार्क हियर. ऐसे क्वेश्चन जो डायरेक्ट बुक में मिल जाएंगे, आई विल नॉट सेंड आंसर, यू जस्ट मार्क दीज 2 पॉइंट्स जो थॉमसन ने एक्सप्लेन किए थे कि एक तो पूरा एटम जो है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, और न्यूट्रलिटी को उसने सेकंड पॉइंट से एक्सप्लेन किया था, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. क्योंकि अब उसने यहाँ नंबर की बात नहीं की थी, उसने पूरा एक स्फीयर पॉजिटिव चार्ज का बता के उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन्स बताए थे. तो ही सजेस्टेड दैट द टोटल negative and positive charges are equal in magnitude. So the atom as a whole is electrically neutral. So for this question, you need to write these 2 points. Mark in your book itself. I will not send answer for this question. Okay. Page 47 page, दोनों points हैं बेटा, you can mark it over there. Yes, second one, on the basis of Rutherford's model of an atom, which subatomic particle is present in the nucleus of an atom? Ma'am, proton. Yes, only protons, because neutrons अभी discover नहीं हुए थे, इसलिए रदरफोर्ड के मॉडल, इवन बोहर मॉडल के भी बाद में
न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई है, बट नाउ वी नो दैट न्यूट्रॉन्स आर आल्सो रिसाइडिंग इन न्यूक्लियस. ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम विद 3 शेल्स. तो ये 3 बना दोगे आप, ये 4 शेल्स है ना, KLMN. यू नीड टू ड्रॉ एन एटम हियर फॉर हैविंग 3 शेल्स ओनली. तो आपने M शेल तक ड्रॉ करना है, 4th शेल ड्रॉ नहीं करनी फॉर दैट क्वेश्चन. ठीक है, तो फॉर दिस क्वेश्चन यू नीड टू ड्रॉ ओनली 3 shells KLM. 4th one is, what do you think would be the observation if the alpha particle scattering experiment is carried out using a foil of a metal other than gold? If Ma'am, yes, the alpha particles wouldn't pass through the metal foil as its density is more than gold foil. Gold foil has such particles that would pierce the alpha particles to pass through it. बेटा एक्चुअली गोल्ड जो उसने सेलेक्ट किया था ना, एक तो ये कि उसकी थिकनेस जो है वो उतनी ज्यादा नहीं आ रही थी, तो डिपेंड करेगा कि कौन सा मेटल लिया है. अदरवाइज क्या होगा कि अगर कोई लाइटर मेटल होता तो वो शीट वैसे ही, मतलब उसको अल्फा पार्टिकल जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो उसको डिफ्लेक्ट ही कर देते वहां से. तो ये डिपेंड करेगा किस टाइप का मेटल लिया. अगर बहुत ज्यादा डेंसिटी वाला मेटल है जिसकी थिन फॉइल भी नहीं हम बना पाते तो डिफ्लेक्शंस उसको ज्यादा मिलने थे. और अगर लाइटर मेटल होता कोई तो मतलब जो डिफ्लेक्शंस हैं वो इस तरह से होने थे कि वो एटम ही डिफ्लेक्ट हो सकते थे वहां से. तो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एलिमेंट विच ही कुड सेलेक्ट. मतलब ऐसे ऑब्जर्वेशंस नहीं मिलने थे जो गोल्ड के साथ मिले थे. ठीक है. न्यूट्रॉन्स. Name the 3 subatomic particles of an atom. 3 subatomic particles: electron, proton, and neutron. It's quite simple question. We have already discussed it. Helium atom has an atomic mass of 4U, 2 protons in its nucleus. How many neutrons does it have? 2. Yes, 2. Because neutrons का number आपको निकालना है mass minus protons का number. So 4U atomic mass means mass number will be 4. And number of protons 2, so 4 minus 2 is equal to 2. Write the distribution of electrons in carbon and sodium atoms. तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बेटा आपको एक सेकेंड थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन आपको इस तरह से लिखनी है. उसका मतलब होता है कॉन्फ़िगरेशन. पहले आप शेल्स के नंबर लिख सकते हो या फिर हर एक कॉन्फ़िगरेशन के साथ पर्टिकुलर अलग अलग शेल्स भी कर सकते हो. यू हैव टू राइट हियर फॉर कार्बन. तो कार्बन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स. 2 will be in K shell, 4 will be in L shell. And sodium has 11 electrons. For that 2 will be in K shell. L shell will have 8 electrons. M will have 1 electron. So in this way you need to mention distribution of electrons, which is also called electronic configuration. ठीक है. तो दोनों में से कोई भी टर्म लिखियो आपको इस तरह से. शेल्स भी साथ में, अगर आप अलग से ऊपर नहीं लिखते हो तो आप यहाँ पर भी फॉर्मेट में लिख सकते हो. K लिखा आपने पहले और फिर उसके साथ ब्रैकेट में 2 कर दो. K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और फिर उसके बाद यहाँ इस सोडियम के जो हमने L शेल लिखनी है कार्बन के लिए. So in this way you can also mention. So both of the ways are correct. Either you can write in the way I have written KLMN और उसके नीचे फिर electrons लिखो. Otherwise किसी भी element की configuration लिख रहे हो, first write the number, name of the shell, then in bracket you can mention the number of electron and then comma भी डाल सकते हो, नहीं भी डालो कोई problem नहीं है. और डायरेक्टली यू कैन मेंशन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. लाइक जैसे यहाँ सोडियम मैंने लिखा है 281, तो सीधा ऐसे भी लिख सकते हो. बट इट्स बेटर इफ यू मेंशन शेल्स. चाहे वो ऊपर लिखो चाहे साइड पे लिखो, कैसे भी लिखो, बट शेल्स मेंशन करके आपने शो करने की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन. इफ K and L shells of an atom are full, then what would be the total number of electrons in an atom?
Ma'am, the total number of electrons would be 10. Yes. Ma'am, 2 in P K. shell will have 2 electrons. L shell can maximum have 8 electrons. The total number of electrons will be 10. Next is page. How will you find the valency of chlorine, sulfur and magnesium? For this question also we need to write the same way. पहले आपको इनकी configurations mention करनी है. And then you can write the valency heading भी दे दो एक साथ में. Excuse me, ma'am. Yes. मैम जैसे हमने वैलेंसी फाइंड करनी है, आपने कहा कि अगर 5 से कम हो तो हम लूज करके ले सकते हैं, हाँ तो जी. मैम जरूरी है कि माइनस करना ही करना है? जैसे वैलेंसी ऑफ सल्फर है 8 - 6 किया तो 2 आ गई वैलेंसी, हाँ जी. माइनस करना जरूरी है कि ऐसे भी लिख सकते हैं? ऐसे ऐसे सीधा ही 2. यस मैम. हाँ, कोई जरूरत नहीं है शोक, वो तो समझाने के लिए. अदरवाइज आपकी अंडरस्टैंडिंग है कि सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इट विल रिक्वायर जस्ट 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट ऑक्टेट. तो राइट एज इट इज, टू नो नीड टू शो कि आपने माइनस करके निकाल लिया. हमें कोई मेथड ओके मैम. वी जस्ट रिक्वायर द एग्जैक्ट नंबर. अब यहाँ 287 है क्लोरीन का, तो वैलेंसी as it requires just 1 electron to complete its octet in M shell, so its valence you can simply write 1. No need to show here 8 - 7. वो आपकी मर्जी, आप जैसे लिख दो. ठीक है, हमें सिर्फ चाहिए. Sulfur has 2 8 and 6 electrons. मतलब जो total number of electrons है 16 है सल्फर के लिए, तो outermost shell में 6 electrons है. It requires 2 more electrons to complete its octet. वैलेंसी इज 2. ठीक है, उसके बाद आता है मैग्नीशियम. मैग्नीशियम हैज एटॉमिक नंबर 12. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 and 2. वैलेंसी, अब ऐसे एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 1 2 3 तक होता है, उनकी टेंडेंसी लूज करने की होती है. तो मैग्नीशियम will lose these 2 electrons and it will acquire this configuration 2 8. 10 electrons जब इसके पास रह जाएंगे तो ये स्टेबल हो जाएगा. And these 2 electrons it uses to lose to satisfy, or you can say to stabilize itself. So valency would be 2. तो वैलेंसी एक्चुअल में क्या होती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच एन एटम गेन्स और लूजेस और शेयर्स व्हाइल बॉन्ड फॉर्मेशन. जब वो केमिकल बॉन्ड बनाता है किसी और स्पीशीज के साथ, तो वो कितने इलेक्ट्रॉन यूज करता है वो बॉन्ड बनाने के लिए, चाहे वो लूज कर रहा है या गेन कर रहा है. या एक तीसरा मेथड होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से भी केमिकल बॉन्ड्स बनते हैं. तो ईदर the number of electrons lost or gained or the number of electrons shared by that element. जैसे कार्बन लूज या गेन नहीं करता, वो शेयर करता है, तो इसलिए कार्बन के ऊपर चार्ज जनरली नहीं आता. कार्बन शेयरिंग से केमिकल बॉन्ड्स बनाता है, बट स्टिल वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4 बॉन्ड्स वो बना सकता है अपने आप को स्टेबल करने के लिए. तो ये एक्चुअल में वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी, कि एक एटम दूसरे एटम के साथ किस तरह से कंबाइन होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो यूज करेगा. इलेक्ट्रॉन्स इनके लिए करेंसी. जैसे आपको कोई चीज चाहिए तो आप मनी से खरीदते हो ना, तो यहाँ पे एटम्स के पास उनकी जो करेंसी है वो इलेक्ट्रॉन्स है. दे यूज देयर इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्डर टू गेट स्टेबिलाइज, इन ऑर्डर टू मेक केमिकल बॉन्ड्स. कंपाउंड्स जो बनते हैं वो सारे केमिकल बॉन्डिंग से बनते हैं. तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से या इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंज से होती है. ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यूज्ड फॉर केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन बाय एन एटम is equal to its valency. तो वो इलेक्ट्रॉन लूज होना, गेन होना, जिस तरह से भी वो अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं, वो ही नंबर उनकी वैलेंसी होता है. तो इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट देयर वैलेंसी. ठीक है, नेक्स्ट इज if number of electrons in an atom is 8 and the number of protons is also 8, then what is the atomic number of atom? Ma'am, 8. 8. Because number of protons are equal to the atomic number of an atom. If number of protons are not given and the question is about neutrons,
atom. So you can also check the number of electrons. But कोई चार्ज स्पीशीज है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स कम या ज्यादा हो सकते हैं. नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज में ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज में कम होंगे. तो उस टाइम पे आप एटॉमिक नंबर उसके चार्जेस को भी मतलब आपको पूरा वो कंसीडर करना पड़ेगा कि कैसा चार्ज है, फिर आप इलेक्ट्रॉन्स का नंबर फाइंड करोगे टोटल, देन यू कैन फाइंड एटॉमिक नंबर. अदरवाइज तो प्रोटॉन्स गिवन है तो कोई बॉदर की जरूरत नहीं है. जितने प्रोटॉन्स हैं एग्जैक्टली उतने ही एटॉमिक नंबर होगा एटम का. What is the charge on an atom? As it Ma'am, is, it will be neutral. every atom is neutral because atoms contain equal number of protons and electrons. Excuse me, ma'am. Yes, beta. मैम जैसे हमें जैसे वैलेंसी वाले जो चार्ट था उसमें हमें पता लग रहा था कि जो कई एलिमेंट है वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन और कई लूज कर देते हैं. मैम जैसे बट हाइड्रोजन है उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो देगा या लेगा इलेक्ट्रॉन जब वो. दोनों टेंडेंसी है बेटा. हाइड्रोजन मैंने आपको बताया था, हमने थर्ड चैप्टर में भी हाइड्रोजन के मैंने आपको दोनों आयंस लिखवाए हैं. हाइड्रोजन पॉजिटिव भी बनाता है आयन और नेगेटिव आयन भी, हाइड्राइड कहते हैं उसको. ठीक है. तो हाइड्रोजन इज यूनिक एलिमेंट इन नेचर विच हैज अ टेंडेंसी टू लूज एज वेल एज गेन. दोनों ही टाइप्स. और इलेक्ट्रॉन शेयरिंग भी करता है. हाइड्रोजन हर तरह से केमिकल बॉन्डिंग कर सकता है. दिस इज यूनिक एलिमेंट ऑफ. मैम मैम एक कार्बन जो था उसकी भी जैसे वैलेंसी 4 है. 4 ही लिखनी है. उसमें एक्चुअली कैटायन एनायन नहीं बनाता कार्बन, शेयरिंग करता है, बट वैलेंसी 4 ही. ओके. ठीक है. चार्ज की इसीलिए मैं कह रही हूँ वैलेंसी के साथ आपको बॉदर नहीं करना कि वो चार्ज नहीं है. अगर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो 4 ही वैलेंसी आएगी, चाहे 8 में से माइनस करके लिखो चाहे वैसे ही देख लो 4 है. तो अप टू 4 आपको 8 में से माइनस करने की जरूरत नहीं होती है. 1 2 3 4 आउटर मोस्ट जो वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल कहते हैं. वैलेंस शेल का मतलब है वो वाली शेल जिसके इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं. इसलिए उस लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अभी पूरे नहीं भरे हैं उस शेल को वैलेंस शेल भी कहते हैं. तो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ही डिसाइड करते हैं कि एक एलिमेंट किस तरह से केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा, कितना लूज करेगा, कितना गेन करेगा या कितना शेयर करेगा. ठीक है. तो वहां से आपको वैलेंसी उठानी होती है हमेशा. तो आउटर मोस्ट शेल में अगर 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उतनी ही वैलेंसी होगी. 1 2 3 4. 4 से ज्यादा है 5 6 7 तो हम 8 में से माइनस करते हैं और उसके लिए फिर हम 3 2 1. और जिसमें 8 कंप्लीट है उनकी वैलेंसी 0 है. Those elements no need not to combine with other atoms. वो combine करते ही नहीं, करने की tendency भी नहीं होती because they are already stabilized with their complete shells. ठीक है. एक्सक्यूज मी मैम. Yes. मैम जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं. Atom अगर neutral है then it will be equal. But if the atom has lost or gained electrons, जैसे अभी हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है, जैसे मैग्नीशियम की यहाँ बात की, इधर जो हमने तीनों एलिमेंट्स की वैलेंसी निकाली, तो अगर मैग्नीशियम के पास 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो अपने 2 जो आउटर मोस्ट शेल में से लूज, then it will be having only 10 electrons. Mg2 पॉजिटिव आयन की अगर आप इलेक्ट्रॉन देखो तो वो 10 होंगे, but it will always have 12 protons. प्रोटॉन्स के नंबर कभी चेंज नहीं होंगे, चाहे एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, गेन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है. इलेक्ट्रॉन्स के नंबर चेंज होते हैं और इसलिए चार्ज स्पीशीज जो कैटायन एनायंस हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल नहीं होते. दैट इज व्हाई दे कैरी चार्जेस. अदरवाइज न्यूट्रल एटम्स, आप सिर्फ एटम की बात कर रहे हो अभी, जैसे क्लोरीन सल्फर मैग्नीशियम की हमने कॉन्फ़िगरेशंस लिखी थी, तो उस सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑलवेज सेम रहते हैं. दैट इज व्हाई एटम्स आर न्यूट्रल एज अ होल. ओके. बट व्हेन दे फॉर्म केमिकल बॉन्ड, जब वो कंबाइन हो रहे होते हैं उस टाइम पे वो चार्जेस उनके ऊपर आ जाते हैं और जब वो चार्ज्ड होंगे तब वो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर डिफर होंगे उनमें प्रोटॉन से, या ज्यादा हो सकते हैं या कम हो सकते हैं. दैट विल डिपेंड ऑन दी टेंडेंसी, कैसे उस एटम ने अपने आप को स्टेबल किया है, लूज किया है, गेन किया है, व्हाटएवर इट हैज डन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल चेंज. ओके. अदरवाइज न्यूट्रल. With the help of table 4.1, find out the mass number of oxygen and sulfur. ये टेबल के बगैर भी याद होगा आपको, ऑक्सीजन का मास नंबर 16 है, सल्फर का 32 है, बिकॉज ऑक्सीजन हैज 8 न्यूट्रॉन्स एंड 8 प्रोटॉन्स. सल्फर हैज 16 प्रोटॉन्स एंड 16 न्यूट्रॉन्स. इक्वल नंबर है दोनों में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स के.
तो मास नंबर इज अकॉर्डिंगली 6. दोनों को ऐड करना है अपने p और n की वैल्यू को. Yes, for the symbol H, D and T, tabulate 3 subatomic particles. तो इसके लिए बेटा आपको ये टेबल अभी मैं यहाँ बना रही हूँ, आप नोट कर सकते हो. Subatomic particles, protons small p, neutrons small n, electrons small e. Here also I am writing mass number, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से रिलेटेड होते हैं isotopes. Because these 3 symbol H, D and T are representing 3 isotopes of hydrogen. Firstly H and then D and then T. तो इसके लिए आपको टेबल जो बनानी है, इसमें हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 1, न्यूट्रॉन्स 0, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1, मास नंबर विल बी 1. फॉर ड्यूटेरियम, D symbolizes deuterium, isotope of hydrogen. Proton, number of protons will be 1. Number of neutrons will also be 1. Electrons will also be 1. तो मास नंबर हो जाएगा 1 + 1 2. इलेक्ट्रॉन्स को नहीं ऐड करना आपने. नेक्स्ट ट्रिटियम, it will have number of protons 1, number of neutrons 2, number of electrons 1, and the mass number will be 3. So this kind of table you need to draw for comparing the subatomic particles in 3 isotopes of hydrogen, and you can also mention the names of these isotopes. जो H है simply उसका symbol 1H1 भी होता है and it is named as protium. Next जो है that is deuterium, and third one is tritium or tritium you can say. This way you can also mention. बेस थोड़ी शिफ्टिंग हो गई, कोई बात नहीं. मास नंबर में से ये नंबर इधर आ गया, बट आपको ये दिस इज ऑल्सो प्रोटियम, स्पेलिंग्स करेक्ट कर लेना. तो इन दिस वे यू नीड टू ड्रॉ दिस टेबल एंड यू कैन से दैट प्रोटियम is the only type of atom which does not have any neutron. उसके अलावा जो isotopes हैं हाइड्रोजन के D and T, they will have number of neutrons 1 and 2 respectively, and mass number जो वेरी कर रहे हैं वो तीनों के 1, 2 and 3 है accordingly. So these 3 symbols are representing 3 isotopes of hydrogen. Next question, write the electronic configuration of any one pair of isotopes and isobars. तो यहाँ पे आप आइसोबार्स और आइसोटोप्स के किसी भी पेयर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है हमने. तो व्हाट विल डू, फर्स्टली विल मेंशन द नंबर ऑफ शेल्स. एक अगर आपको 3-4 चीजों की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है, एक ही बार टॉप पे सारे शेल्स के नंबर लिख लो. उसके बाद पहले आप आइसोबार्स को डिस्कस, आइसोटोप्स को डिस्कस कर रहे हो तो राइट हेडिंग आइसोटोप्स हियर, एंड देन कोई भी एक, अभी मैं यहाँ कार्बन 12 isotope उठा रही हूँ. कार्बन has atomic number 6, electronic configuration is 2,4. Next isotope of carbon has mass 14, atomic number कभी change नहीं होता है isotopes का, तो electronic configuration will also remain same. Now आप इसकी जगह हाइड्रोजन का भी ले सकते हो. हाइड्रोजन के K शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो तीनों में ही H, D, T में एक एक इलेक्ट्रॉन होगा. ऑक्सीजन ले रहे हो, क्लोरीन ले रहे हो, अकॉर्डिंगली जो मास है वो ही वेरी करेगा आइसोटोप्स का. कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम. नेक्स्ट इज आइसोबार्स. आइसोबार्स में बेटा कॉन्फ़िगरेशन डिफर आएगी क्योंकि उनके एटम्स जो अलग अलग एलिमेंट्स को बिलोंग करते हैं. अगर हम कैल्शियम 40 ले रहे हैं फर्स्ट, तो इट विल हैव कॉन्फ़िगरेशन 2 8 8 2, एंड एक उसका जो पेयर है आइसोबार आर्गन 40. आर्गन हैज 18 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2 8 8. और कैल्शियम का 20 है तो उस पे 20 इलेक्ट्रॉन. तो इन दिस वे यू कैन कंसीडर दैट आइसोटॉप्स डू नॉट हैव or they have similar configuration, but isobars do not have similar configuration because isobars belong to different elements
whereas isotopes belong to similar elements. तो अगर एलिमेंट सेम है तो कभी भी कॉन्फ़िगरेशन वेरी नहीं करेगी, सिर्फ मास वेरी करेगा, और मास वेरी करता है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में कोई डिफरेंस नहीं होता आइसोटोप्स में, बट आइसोबार्स डिफर इन एवरी एस्पेक्ट. उनका सिर्फ कोइंसिडेंटली न्यूक्लियॉन्स का नंबर सेम हो जाता है, तो उनमें प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन सब अलग अलग होंगे, तो इसके जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो डिफर होंगी. ठीक है. नेक्स्ट विल बी, जस्ट वेट, बैक एक्सरसाइजेस. ये बेटा इन टेक्स्ट एक्सरसाइजेस थी, जो रिक्वायर्ड है उसके आंसर्स मैं भेज दूंगी, जो बुक में डायरेक्ट नहीं है, बट अदरवाइज जो मैंने मार्क करवाए हैं और ये छोटे छोटे कॉन्फ़िगरेशंस तो आप खुद कर सकते हो. नेक्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट वन, कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स. इसको भी बेटा एक टेबल में वो मैं आपको नोट डाउन करके भेज दूंगी, अदरवाइज आपको एक टेबुलर फॉर्म में करना है. इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की 3 प्रॉपर्टीज हमने बेसिकली डिस्कस करनी है, मास, उनके ऊपर चार्ज एंड देयर लोकेशन. तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1/1830, ये आपकी बुक में 1/2000 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन लिखा है, ऐसे ही लिखना है, ब्रैकेट में नेग्लिजिबल भी लिख सकते हो. प्रोटॉन्स का मास 1u है, न्यूट्रॉन्स हैव मास 1u. चार्ज इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पे +1, न्यूट्रॉन पे 0. लोकेशन, इलेक्ट्रॉन्स are present in extra nuclear part in shells and protons and neutrons are present in the nucleus. I will send answer in group किस तरह से आपको टेबल फॉर्म में लिखना है. और एक चीज और आपको मैं ना उस क्वेश्चन में जैसे -1 इलेक्ट्रॉन पे है, प्रोटॉन पे +1, मैं वो एग्जैक्ट वैल्यू भी ब्रैकेट में लिख दूंगी, बट ये आपकी मर्जी है जो बच्चे चाहते हैं, अदरवाइज इट्स नॉट नेसेसरी at this level to learn that exact value of charge. But sometimes in some competitions, जैसे आप लोग Olympiads वगैरह देते रहते हो, तो you can have that kind of questions asking the exact value of electronic charge or mass. तो वो मैं exact values bracket में लिख के भेजूंगी आपको. आपकी मर्जी है, नोटबुक पे नोट करने हैं तो करना. आपके 9th के लेवल पे एनसीईआरटी सिलेबस में अभी एग्जैक्ट वैल्यू मास की या चार्ज की नहीं है, सिर्फ जो रिलेटिव वैल्यूज हैं वो ही आपको करनी है. ठीक है. So but I will send you in that answer. What are the limitations of J.J. Thomson's model of an atom? Yes, who will tell this? Limitations of Thomson's model. Ma'am, it failed to explain how positive and negative charges are arranged in an atom so close to each other. Hanji, and one more if you can. Basically जो आपकी बुक. हाँ जी बोलिए. According to J.J. Thomson model of an atom, it consists of a positively charged sphere with neutrons embedded in it. However, it was later found that the positively charged particles reside at the center of the atom called the nucleus, and the electron revolve around the nucleus. Okay, that is okay, but major limitation was that it could not explain the results of alpha scattering experiments performed by Rutherford. ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स, क्योंकि रदरफोर्ड ने भी इसी तरह के स्ट्रक्चर को लेकर के अपने ऑब्जर्वेशन किए, बट ही डिडंट ऑब्जर्व दैट एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स ना, तो उसने ही कर दिया था इसको कि थॉमसन के अकॉर्डिंग स्फीयर नहीं हो सकता वहां पे पॉजिटिव चार्ज का. ठीक है. तो मेजर लिमिटेशन एक तो यही है कि वो उसके अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एग्जैक्ट किस तरह की लोकेशन है वो नहीं एक्सप्लेन कर पाया था, बिकॉज ही कुड नॉट एक्सप्लेन द रिजल्ट्स ऑफ रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट. ओके, दैट लेड टू द डिस्कवरी. वो आपने यहाँ नहीं बताना कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई बाद में, ऐसे हुआ. आपको सिर्फ लिमिटेशन का मतलब है कि वो क्या चीज नहीं समझा पाया था बस. And what were the limitations of Rutherford's model? Rutherford's model के according electrons are revolving around oppositely charged nucleus in a way as the planets revolve around the sun. But as these macroscopic particles are not charged bodies,
whereas electrons and protons carry opposite charges. So when such oppositely charged particles revolve around, they will emit radiation due to acceleration, and that will result in decreased radius of the orbit, और जो उनकी orbit का radius है वो छोटा होता जाएगा, radius will become smaller and smaller of the orbit, and finally the electron will fall into the nucleus and atom would collapse. But actually, we know that atoms are quite stable. So this was the major limitation of Rutherford's model, that it could not explain the stability of atom. थॉमसन का मॉडल तो अरेंजमेंट ही एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, रदरफोर्ड का मॉडल अरेंजमेंट तो कर रहा था एक्सप्लेन, बट वो स्टेबिलिटी क्यों है एटम के अंदर वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. तो इसके लिए बाद में फिर जो बोहर का मॉडल है उसने उसकी स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया था शेल्स के फॉर्म में, कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली एट स्पेसिफिक ऑर्बिट्स which has specific energy and specific radius. ये चीज रदरफोर्ड ने नहीं बताई थी. ठीक है, तो ये limitations I will send in group. Fourth question बेटा यही मार्क कर लो बुक पे ही, because the points are given in your book. I will not write this answer in WhatsApp. Here you can mark the points. ये रहा Bohr's model of atom. यहाँ एक फर्स्ट और सेकंड 2 पॉइंट्स है, आपने इसको सेकंड और थर्ड कर दो, फर्स्ट पॉइंट एक ऐड करो. नील्स बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस. ये पॉइंट आपको रदरफोर्ड वाले में से मिल जाएगा. फर्स्ट पॉइंट आप वही लिखो, क्योंकि वो न्यूक्लियस तो था ही ना वो एटम में, उसने सिर्फ आगे इलेक्ट्रॉन्स वाली चीज जो है वो इलेबोरेट की थी. बाकी तो फर्स्ट पॉइंट आप वही लिखोगे, एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दिस न्यूक्लियस इन स्पेसिफिक ऑर्बिट्स नेम्ड एज शेल्स. और उन शेल्स के फिर नेम्स भी आपको यहाँ मेंशन करने हैं. जो फर्स्ट पॉइंट है ना, only certain special orbits known as discrete orbits of electrons are allowed in the atom, and Bohr named these shells or these orbits as KLMN. ये एक लाइन भी ऐड कर सकते हो. अदरवाइज आई विल राइट, ये भी मैं भेज दूंगी, अब फिर क्लियर नहीं होगा आपको कैसे लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट इज compare all the proposed models of an atom given in this chapter. Comparison. हाँ जी बोलिए बेटा. मैम जैसे रदरफोर्ड की लिमिट हमने पढ़ा कि लिमिटेशन उसने एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि वो स्टेबल कैसे मैटर. तो मैम बोहर्स मॉडल में भी तो उसने यही बोला, रिवॉल्व अराउंड द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ्स अराउंड. बोहर ने जो बताया ना, उसने बोला कि एटम्स जब रिवॉल्व करते हैं तो अगर वो एक ही पर्टिकुलर शेल में होते हैं तो एनर्जी लूज नहीं होती है, बट जब भी वो एनर्जी लूज करेगा तो वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट पे जंप कर जाएगा, या फिर एनर्जी कहीं से आप उसको प्रोवाइड करोगे, जैसे आपने हीट किया किसी मैटर को, या इलेक्ट्रिकली एनर्जी प्रोवाइड किया, सनलाइट से कोई एनर्जी ले रहा है वो, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन एक लोअर लेवल से हायर लेवल पे जंप कर जाते हैं. मतलब इलेक्ट्रॉन जंप्स टेक प्लेस व्हेन एनर्जी इज लॉस्ट और गेन्ड बाय एटम बाय इलेक्ट्रॉन, बट इलेक्ट्रॉन्स could or cannot be there in the nucleus. मतलब वो कभी फॉल भी नहीं करेगा और वहां पे प्रेजेंट हो भी नहीं सकता. मैथमेटिकली सारी उसने चीजें कैलकुलेट की थी. उसके मॉडल का जो मेन लिमिटेशन था वो आप आगे पढ़ोगे कि हर एक एटम का ना, जैसे हम लोग के फिंगरप्रिंट्स हमारी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के फिंगरप्रिंट्स किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के फिंगरप्रिंट से मैच नहीं करते. तो सिमिलरली एलिमेंट्स जो हैं 118 एलिमेंट्स, इन सब के लिए इनके कैरेक्टरिस्टिक कुछ वेवलेंथ्स होती हैं जिनको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहते हैं. जैसे स्पेक्ट्रम आपने पढ़ा है, लाइट का होता है 7 कलर्स का बैंड मिलता है. ऐसे हर एक एलिमेंट अपना अपना एक स्पेक्ट्रम शो करते हैं जब उनको हम किसी स्पेक्ट्रोस्कोप में स्टडी करते हैं, या उनमें से जो रेडिएशन एमिट होती है उसको स्टडी करते हैं अगर, तो वो जो रेडिएशन है वो एक स्पेसिफिक
कलर की या स्पेसिफिक वेवलेंथ की होती हैं। वो चीजों की एक्सप्लेनेशन के लिए मतलब आगे फर्दर स्पेक्ट्रा जब डिस्कवर हुआ बहुत सारे एलिमेंट्स का, उसमें बहुत सारे कलर्स, लाइंस, ये सब चीजें मिली, तो बोहर के पास इस चीज का आंसर नहीं था। वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को बेसिकली एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। और इसी के लिए बाद में जो मॉडल्स आए उनमें ये बताया गया कि हर एक शेल भी फर्दर सब शेल्स में डिवाइडेड है। रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट ऑर्बिट वाज करेक्ट, क्योंकि उस एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जब घूमता है तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से एनर्जी लूज नहीं करेगा। इसके लिए उसने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की कि वो उस डिस्टेंस पे जब रिवॉल्व कर रहा है दैट विल बी हैविंग अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, and if it loses energy तो it can lose or it can jump from some higher to lower orbit, but it will not fall into the nucleus. nucleus में वो कभी fall नहीं करेगा because nucleus के अंदर रहने के जो calculations उसने की उसके अकॉर्डिंग पॉसिबिलिटी ही नहीं थी। और इवन ये बाद वाले मॉडल्स में भी सब में प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रॉन्स विल नॉट फॉल, बट जो अभी उसने स्टेबिलिटी समझाई थी वो अपने इन एनर्जी लेवल, और ये इसका जो मॉडल था इसके अकॉर्डिंग जो KLMN शेल्स है वो करेक्ट थी, बट इसने फर्दर और इलेबोरेट नहीं कर पाया था बोहर, दैट वाज द मेजर लिमिटेशन। ओके, स्टेबिलिटी इज ओके विद बोहर्स मॉडल। रदरफोर्ड ने क्योंकि कुछ भी नहीं बताया था कि वो किस जगह पे रहकर रिवॉल्व करेंगे, उसने कहा कि वो कहीं पर भी घूम सकते हैं, बहुत सारे उसने ऑर्बिट्स की पॉसिबिलिटी बता दी थी, तो दैट वाज नॉट करेक्ट। क्वेश्चन इज कंपेयर, ये कंपैरिजन भी टेबल फॉर्म में मैं भेज दूंगी आपको लिख करके ग्रुप में, अदरवाइज इतना ऐसा डिटेल्ड क्वेश्चन हम नहीं डालते एग्जाम में कि तीनों ही मॉडल्स को कंपेयर करोगे तो कई बार बच्चे पूरा पूरा ही लिख देते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे। बेसिकली आपको बस इतना पता होना चाहिए कि थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग पूरा एटम ही पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के फॉर्म में है, बट बाकी के जो मॉडल्स हैं उनके अकॉर्डिंग सारा पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक छोटे से न्यूक्लियस में प्रेजेंट है, ठीक है, बाकी का एटम हॉलो है। मेन डिफरेंस ये था। और रदरफोर्ड और थॉमसन मेन डिफरेंस है दैट इज according to Rutherford electrons can revolve around the nucleus anywhere, but according to Bohr there are specific discrete orbits having specific energy and specific radius, and electrons can revolve around only in those orbits. हाँ जी बेटा, someone was asking. मैम आपने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किसी और शेल में जंप कर सकते हैं, तो मैम अगर वो के शेल में जंप करेंगे तो उसमें तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही हो सकते हैं, अगर वो इंक्रीज हो जाएंगे। तब नहीं होती जब वो पहले से ही फिल्ड है पूरी शेल, ठीक है, जिस शेल में स्पेस होगा वहीं पर ही जंप चलेंगे, ऐसे नहीं होता। जो चीज वैसे